Hey all, how are you doing? How are studies going on? I'm glad to announce here that from today, EduFacts is launching a series of NTSA Preparation Top 50. Here you will get daily 50 questions for your practice. I hope you all are doing very well. Today we are beginning with chemistry, chapter 1st and chapter 2, chapter 2nd. So, without wasting time, let's get it on. The first one question: magnesium on burning produces the flame of which color? Yes, that is of white color. Second one question: burning of magnesium is which kind of reaction? That is of oxidation and combination reaction. Metal oxides are what kind of nature? That is of acidic or basic? Yes, absolutely basic. The fourth one question is reaction of lead nitrate and the potassium iodide results in formation of which color of precipitate? That is of yellow color precipitate. The next one question is reaction of zinc with hydrochloric acid is a type of exothermic reaction or endothermic reaction? That is of exothermic reaction. Next one question is the substances that undergo chemical reactions are called? Definitely reactants. जब हम इक्वेशन लिखते हैं, कोई रिएक्शंस जब परफॉर्म होती है, देर आर टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं दैट आर कॉल्ड रिएक्टेड, जो रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. सो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स विच आर रिटन इन right hand side. After that, unbalanced chemical reactions are called skeletal reactions. Next one question is the most important question for all of you. This is in your theory and for theoretical basis it is also important that what is law of conservation of mass. This law is responsible for balancing of reaction, and according to this law, what can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction? Yes, obviously that is mass. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The next one question is neutralization is always the double displacement reaction. Yes, obviously. Why? Because of neutralization means what? When acid reacts with base and it forms salt and water. So this is double displacement reaction. The next one question is what is the formula for marble? Yes, that is calcium carbonate, CaCO3. The next one question is the method of balancing the equation is called heat and trial method. Next one question is हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं हम उसमें उसका स्टेट मेंशन करते हैं, हम उसमें कैटालिस्ट मेंशन करते हैं, हम टेम्परेचर मेंशन करते हैं. तो हियर इज द क्वेश्चन फॉर विच स्टेट is written if the product or the reactant is present in the solution of water, that is of aqueous state, और हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर AQ के फॉर्म में लिखते हैं. When iron reacts with water to form ferrous sulfate, water is present in which form? Definitely gaseous state. Why? Because of iron की रस्टिंग की प्रोसेस आपने पढ़ी है. आयरन जब भी उसमें रस्टिंग की प्रोसेस परफॉर्म होती है तब आयरन मॉइस्चर के साथ या ह्यूमिडिटी के साथ उसकी रिएक्शन होती है. दैट मीन्स वाटर कंटेंट जो होते हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ इन गैशियस स्टेट. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? Endothermic reactions. Why? Because of decomposition. What is decomposition? That means किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना. किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब की जाती है. दैट्स वाई दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. द नेक्स्ट वन इज रेस्पायरेशन इज डैश रिएक्शन. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? Exothermic. Yes, we are not talking about only breathing. Here is reaction. Respiration means the combination reaction of respiration, metabolism and breathing. So this is exothermic reaction. The next one question is reaction of formation of slaked lime from quicklime is what kind of reaction? That is
exothermic reaction. Why? What is the formula of quicklime? That is of CaO, calcium oxide. And what is the formula for slaked lime? That is CaOH whole twice, calcium hydroxide. The next one question is the rotten smell after heating ferrous sulfate is of sulfur dioxide and sulfur trioxide, SO2, SO3. The next one question number 20. In electrolytic decomposition of water, hydrogen is obtained at the cathode and oxygen is obtained at the anode. आपको ये याद रखना है दैट कि कैथोड में पॉजिटिव आयंस जमा होते हैं और नेगेटिव आयंस एनोड में जमा होते हैं. तो हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21. आफ्टर हीटिंग lead nitrate, brown fumes of which gas are obtained? That is of nitrogen gas. The next one question is after heating ferrous sulfate, its color changes to brown from green. Yes, जब हम ferrous sulfate को गर्म करते हैं green color से उसका color brown हो जाता है. Question number 23. Ferrous sulfate on heating loses how many water of crystallization? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो रिमूव होते हैं? देयर आर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉसेस व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24. आफ्टर कीपिंग सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट इट्स कलर चेंजेस टू ग्रे. सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है. वी इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ ऑर्नामेंट्स. आप जानते ही हैं सिल्वर जो है वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है, ग्रेश हो जाता है. सो इन सनलाइट इट्स कलर चेंजेस टू ग्रे. क्वेश्चन नंबर 25. इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, और इनसॉल्युबल होते हैं इसीलिए ही वो सेटल डाउन हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26. Reaction of barium hydroxide with ammonium chloride is exothermic or endothermic? Endothermic reaction. Barium hydroxide formula BaOH whole twice with ammonium chloride NH4Cl. The next one question is question number 27. Copper oxide on heating converts into black color. Copper oxide को अगर गर्म किया जाए CuO तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 28. द रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस. द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस्ड adds hydrogen while the substance oxidizes removes hydrogen itself. This is the definition of reduction also. Reduction means what? Hydrogen का जुड़ना, right? या ऑक्सीजन का रिमूव होना, right? और ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना. आपने एक रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए. द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस्ड adds hydrogen while the substance oxidizes removes hydrogen itself. So the next one question is 31. The silver gets corroded due to formation of silver sulfide. सिल्वर भी corrode होती है और वो फॉर्म करती है सिल्वर सल्फाइड दैट इज ऑफ Ag2S. The next one question number 32. Dash can be used as antioxidant. नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट. आपने रेंसिडिटी में पढ़ा है, आपने वेफर्स और चिप्स के पैकेट्स जिसमें जो गैस भरी होती है आपने उसमें भी पढ़ा है. नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33. प्रेसिपिटेट्स आर डैश इन नेचर. अभी बताया मैंने प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो वो इनसॉल्युबल होते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम और क्विकलाइम का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है. क्वेश्चन नंबर 35. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड टेस्ट में सोर होते हैं और बेसिस बीटर होते हैं. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मीन्स ये स्मेल पावर के थ्रू हम किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं. स्पेशली हमने इंडिकेटर्स एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए हुए हैं. Such as clove detect to have no smell in acid or base. Definitely base. Base में
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एज व्हेन वी यूज क्लोव, तो वो कोई स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती. नेक्स्ट वन, लाइकेन बिलोंग्स टू विच किंगडम ऑफ प्लांटी, दैट इज ऑफ थैलोफाइटा, क्योंकि लाइकेन का स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है जो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है. रूट, स्टीम या लीव्स में उसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है. सो इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा. द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है? पर्पल कलर देता है. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 40, टर्मरिक चेंजेस टू विच कलर व्हेन इट इज एसिड सॉल्यूशन. एसिड सॉल्यूशन में टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, और जब ये एसिड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इट गिव्स येलो कलर, और बेसिस में ये रेड कलर अपीयर करता है. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41, which gas is liberated when acid react with metal. When acid react with metal, hydrogen gas is liberated with popping sound. The next one question is question number 42, zinc reacts with both acid and base to form hydrogen gas, thus it is called amphoteric oxide. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, इसलिए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, लाइक जिंक. नेक्स्ट वन क्वेश्चन 43, विच गैस कॉसेस एफर्वेसेंस एंड एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल. एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस. So which gas causes effervescence and extinguishes the burning candle, that is of carbon dioxide gas. The next one is non-metallic oxides are dash in nature, obviously acidic in nature. Question number 45, which gas is liberated when acid react with carbonate and bicarbonate. ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जहाँ पर भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द कैल्शियम कार्बोनेट इट फॉर्म्स. अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने के बाद उसके बाइकार्बोनेट्स बनते हैं. सो इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 whole twice, or it is also known as calcium hydrogen carbonate. The next one question is question number 47, when copper oxide reacts with hydrochloric acid it forms copper chloride and which is of blue green color. जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लू ग्रीन अपीयर होता है जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 48, hydrogen and chlorine will join to form hydrochloric acid which is an ionic bond. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है, क्लोरीन का जो कन्फिग्रेशन होता है वो 287 होता है, 17 होता है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी गेनिंग कैपेसिटी होती है 1 इलेक्ट्रॉन की, और हाइड्रोजन की गिविंग कैपेसिटी होती है. आपको पता होना चाहिए दैट कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की स्पेसिफिक और सेपरेट प्लेस है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है एज हाइड्रोनियम आयन. इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन आल्सो, लेकिन ऑलमोस्ट हाइड्रोजन गिविंग कैपेसिटी में होता है, प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है विच इज़ एन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें गिविंग और टेकिंग दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की दोनों ही तरीके से बॉन्डिंग हो रही है. सो दिस इज आयनिक बॉन्ड. द नेक्स्ट वन इज द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं दैट आर कॉल्ड एल्कलीज. एल्कलीज देखिए, अगर हम एसिड को एसिड में वाटर कंटेंट में लाते हैं तो दैट इज ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड. बेस के लिए जब आता है तो बेस इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, दैट इज बेस. जब उसमें वाटर कंटेंट आ जाता है तो दैट इज नोन एज एल्कलीज. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट वन क्वेश्चन फॉर today's top 50, always one should add acid to water while dilution. So it is helpful for you. I hope we will be here with our next top 50 questions for NTSC Scholastic Aptitude Test very soon. So keep watching.
Thanks for watching.